Good morning, dear students. So, today we are going to do our next chapter from the book A Pact with the Sun, chapter number 7, The Wonder Called Sleep. So, before reading the chapter, let's read what is there in the first part of the chapter. So, it's our body and brain recover from fatigue after a good sleep. Yes, until and unless we have a good sleep, we cannot recover from our tiredness. Fatigue means tiredness, थकावट. हमारी बॉडी और ब्रेन को हम उस थकान से उभर जाते हैं, उसको रिकवर करता है आफ्टर अ गुड स्लीप, एक अच्छी नींद के बाद. We dream while sleeping, but we do not always remember our dreams. Yes, it happens with us. We sometimes we dream during sleep, but we do not always remember that what we saw in our dreams. During sleep, our heartbeat becomes slower and our temperature and blood pressure go down. Means they are just at ease. Our heartbeat, our body temperature and blood pressure, they just go down. Their working gets slow. So this gives comfort to our brain, our mind, and of course our body too. So it is, we know enough about what sleep is, though we don't know what exactly causes sleep. Yes, although we know कि what sleep is, हम सबको पता है नींद क्या है. We do sleep every night, sometimes during day also, but हमें ये नहीं पता कि नींद का कारण क्या है. What exactly causes sleep? नींद क्यों आती है? Sleep is a state of rest. As we know, it is a state of rest, an unconscious rest. Unconscious means not awake or aware. जब आप जगे नहीं हो and you are not aware about your surroundings, you are senseless at that time. बेहोश होना, एक बेहोशी की रेस्ट, जब हम अपने होश में नहीं होते. When we sleep, our body recovers from fatigue caused by the day's activities. हाँ जी, हम सबको पता है कि जब हम दिन में बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं, we get tired. हमें इतनी थकावट होती है कि हम sometimes we say when we lay on our bed कि आज तो बेड पे गिरते ही नींद आ गई, इतनी थकावट थी. ठीक है. सो जो नींद है वो हमारी बॉडी को रिकवर करती है उस टायर्डनेस से. जो हमने दिन में काम किए होते हैं उसके कारण जो हमारी थकावट हुई होती है, नींद उस सारी थकावट को दूर करती है. आफ्टर अ गुड स्लीप एंड द रेस्ट दैट इट गिव्स, वी बिकम अलर्ट एंड एक्टिव अगेन. And you must have noticed this, that whenever we get up in the morning the next day, we again feel fresh. We again feel active and attentive, and we are ready for the next day's activities. Until and unless we sleep, we can't have that energy to work for the next day. जब तक हम अच्छी नींद सो नहीं लेते, हमारी बॉडी को एनर्जी या वो अलर्टनेस नहीं मिलती है कि हम अगले दिन के काम उसी फुर्ती और उसी एनर्जी के साथ कर सकें and ready for the normal activities of the day. Yes, as I earlier told you, we get ready for the next activities, right? When we wake up in the morning, it is not always possible for us to remember what happened when we were asleep. हाँ जी, जो हमने पहले ऊपर पॉइंट्स में पढ़ा था कि whenever we wake up in the morning, it's not always necessary that we are remembering everything. What did we see in our sleep, or what happened during when we were asleep. We may remember a dream, but the rest of our sleep was a kind of darkness. Obviously, sometimes what happens, you tell your mama, you tell your papa कि मैंने ना रात को या मॉर्निंग में ये सपना देखा. हम उस सपने को याद रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते. ऐसा होता है हमारे साथ. समटाइम्स हम इतने ऑकवर्ड से, इतने वियर्ड से ड्रीम्स देखते हैं अपनी नींद में
कि sometimes we don't remember those dreams. So it is there कि we may or may not remember the dream, but the rest of our sleep, बस उस dream के अलावा जो हमारी नींद थी, what is that? The rest of our sleep was a kind of darkness, एक तरह का अंधेरा था, in which nothing seems to have taken place, and we feel that nothing took place during that time. In that darkness nothing took place. We were just asleep and we were just unconscious, we were not aware of our surroundings. So several things happen to our body while we are sleeping. So what happens? Let's read it. As we sink deeper into sleep, sink होता है डूब जाना, या go down जब हम नीचे किसी सरफेस पे, बॉटम पे डूबते जाते हैं. सो जैसे ही हम गहरी नींद में जाते हैं, सिंक डीपर मीन्स गो डाउन डीप इनटू आवर स्लीप, आवर मसल्स रिलैक्स मोर एंड मोर. हमारी जो मसल्स हैं दे आर एट ईज, उनको बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है. दे आर एट देयर कंफर्ट, बहुत ज़्यादा. आर हार्ट बीट बिकम्स स्लोअर, हमारी हार्ट बीट जो ड्यूरिंग डे टाइम व्हेन वी डू सम वर्क, आर हार्ट बीट गेट्स फास्टर. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड व्हाइल प्लेइंग और ड्यूरिंग योर गेम्स पीरियड, आपने बहुत बार ये फील किया होगा कि योर हार्ट बीट गेट्स फास्टर. जितना फास्ट हम काम करते हैं उतनी फास्ट हमारी हार्ट बीट होती जाती है. बट वॉट हैपन्स ड्यूरिंग स्लीप? इट बिकम्स स्लोअर, मीन्स कि इसको भी आराम मिलता है, हमारे हार्ट की वर्किंग को भी आराम मिलता है. आर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन. बॉडी टेम्परेचर एंड बीपी, ब्लड प्रेशर इज बीपी, दे ऑल्सो गो डाउन. डाउन का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही डाउन चले गए और खत्म हो गए. इट मीन्स कि इनकी जो वर्किंग है वो स्लो हो गई, इनको आराम मिलना शुरू हो गया. The ever active brain also slows down. And you know that our brain is ever active. Even during sleep, it is active, but that is in unconscious state, right? So, जो हमारा ever active brain है, इसकी working भी थोड़ी slow हो जाती है, and it is very necessary फॉर इट्स वेल बींग. हमारी बॉडी, हमारे माइंड, हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों को आराम मिले. अदरवाइज दे विल नॉट बी इन अ पोजिशन टू वर्क नॉर्मली फॉर द नेक्स्ट डे. अगर हमें आराम नहीं मिलता तो क्या होता है, हम दोबारा से अगले काम करने के लिए नॉर्मल नहीं हो सकते. our body will not have that kind of energy and that kind of alertness and activeness, right? तभी कहते हैं कि भगवान ने रात बनाई है तो अच्छा किया है, नहीं तो हम तो ऐसे हैं कि हम दिन रात काम करते रहें. पर रात को सोना, अपनी बॉडी को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है. एंड यू हैव रेड द बेनिफिट्स ऑफ अ गुड स्लीप in your physical education, in your science, social science, everywhere we read the benefits. Even in our languages हमें पता है कि नींद की क्या इम्पोर्टेंस है. तभी कहते हैं कि एक बच्चे के लिए 10 to 12 hours of sleep, एक यंगस्टर के लिए 8 to 10 hours of sleep is really really very important, right? The ever active brain also slows down so that we can't think or act consciously. Consciously means अपने होश में, knowingly हम कुछ भी ना सोचें ना कुछ काम करें. But we dream. But during sleep, what happens? We dream at that time. When we wake up, our temperature and blood pressure rise to normal. Again, the next morning when we wake up, हमारा जो body temperature है, जो blood pressure है, they just come to their normal speed. Our heartbeat and breathing also become normal and we are fully awake and have forgotten most, if not all. हाँ जी, तो हमारी जब हार्ट बीट और ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है और हम पूरे जग जाते हैं सुबह को, तो हम क्या होता है, रात को जो हुआ होता है ना, मोस्ट ऑफ द पार्ट वी हैव फॉरगॉटन. अगर हम सारा नहीं भूलते, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी जस्ट फॉरगेट कि व्हाट हैपेंड विद अस ड्यूरिंग दैट स्लीप. रात को कभी आपकी नींद खुल जाए, कभी रात को खुल जाती है 2 बजे, कभी मॉर्निंग में 4 बजे, बट आप तो बच्चे हो, आपकी तो नहीं खुलती होगी.
बड़ों की तो खुल जाती है. सो व्हाट हैपेंस, तब हमें थोड़ा सा लगता है कि हाँ अभी क्या हुआ है, एंड आफ्टर दैट वी अगेन गो टू डीप स्लीप, राइट. द ड्रीम्स दैट वी हैड वाइल स्लीपिंग. हाँ जी, इसमें हमने ड्रीम्स की भी बात की है. एंड हैव फॉरगॉटन मोस्ट इफ नॉट ऑल द ड्रीम्स दैट वी हैड वाइल स्लीपिंग. ड्रीम्स के बारे में उसने बोला है कि हम ड्रीम्स को भी, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द ड्रीम्स दैट वी हैड ड्यूरिंग आवर स्लीप, वी मस्ट हैव फॉरगॉटन इट इफ नॉट ऑल. अगर सारा नहीं तो बहुत सारा पोर्शन इसका भूल जाते हैं. सो इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर वी विल रीड, a dream is an activity of the mind when we are asleep. Dream है क्या? Now there is a definition of dream कि what is dream? It is an activity of mind. Dreams help us sleep through noise and other disturbances. Dreams may reveal something about one's problems, but they cannot tell the future. Reveal means disclose, कुछ जाहिर करना. ड्रीम्स हमारी प्रॉब्लम्स को डिस्क्लोज करने में, उनको बताने में दे आर एबल, बट इट डज नॉट मीन दैट दे कैन टेल द फ्यूचर. ड्रीम्स हमारा फ्यूचर नहीं बता सकते. हाँ, हमारी बॉडी से रिलेटेड या हमारे माइंड से रिलेटेड हमें कुछ प्रॉब्लम अंदर ही है तो उसके बारे में ये कुछ जरूर बता सकते हैं. What is a dream? Now see, what is a dream? It is an activity of mind that takes place when we are asleep. ये एक दिमाग की एक्टिविटी है, आपके मन की एक्टिविटी है जब हम सोए होते हैं. Some dreams are probable. Probable means predictable, जिसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं. प्रिडिक्ट करना क्या होता है? किसी चीज के बारे में एडवांस में जानना. ठीक है. सो सम ड्रीम्स आर प्रोबेबल while others are not, पर कुछ नहीं होते. That only means that many of the things that happen in dreams could happen when we are awake. इसका सिर्फ यही मतलब है कि जो चीजें हम ड्रीम्स में देखते हैं, जो हमारे साथ ड्रीम में हुई हैं, वो एक्चुअल में भी हो सकती हैं when we are awake, जब हम जगे हैं. It's not necessary that they are just happening during our dreams, but they can happen with us even when we are awake. Others could not, और कुछ नहीं हो सकती. Dreams seem to be important for several reasons. Several means many. One is that a dream can help us to sleep through noise or other disturbances. Dream में होता क्या है? When we are just engrossed in a dream, so we are not aware about our surroundings. We are not aware कि हमारे आसपास कितना शोर हो रहा है या कितनी डिस्टर्बेंस हो रही है. हम उस शोर में भी, उस डिस्टर्बेंस में भी आराम से सो सकते हैं because of the dreams. For example, the alarm clock rings, but our mind causes us to dream that the telephone or doorbell is ringing. होता क्या है? एक एग्जाम्पल है, हमने अलार्म लगाया है तो अलार्म क्लॉक बज गया. सपोज इट इज एट 4 AM, 4 बजे सुबह के अलार्म बजा. बट हमारा मन हमें कहता है, हमारा मन हमें ये सोचने के लिए फोर्स करता है कि हमारे सपने में कोई टेलीफोन या डोर बेल रिंग हुई है. हम उस अलार्म क्लॉक को क्या समझ लेते हैं कि शायद फोन बजा है या डोर बेल बजी है, एंड दैट वी आर अवेक एंड आंसरिंग इट. और हम जगे हुए हैं और हम इसको आंसर भी कर रहे हैं उस अलार्म क्लॉक को सुन के. In reality, it is an alarm clock, but due to our dream, we feel that it is a telephone or a doorbell, and we are awake at that time and we try to answer that bell. Certain doctors have found that one's dreams often reveal a great deal about one's problems. कुछ डॉक्टर्स ने ये भी पता किया है कि हमारे जो ड्रीम्स हैं ये हेल्प करते हैं हमारी प्रॉब्लम्स को रिवील करने में. रिवील मीन्स डिस्क्लोज. डिस्क्लोज करने में आर ड्रीम्स हेल्प अस टू डिस्क्लोज अ ग्रेट डील ऑफ आर प्रॉब्लम्स इफ अंडरस्टूड करेक्टली. अगर हम अपने सपनों को अच्छे से समझ जाएं तो हमें अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में पता चल सकता है. This thing has been found by certain doctors, right? They can provide a key to the solution of those problems. And doctors say that dreams, they can provide us a solution also.
उसी सपने में अगर हमारी प्रॉब्लम के बारे में पता चलता है तो उसके सॉल्यूशन के बारे में भी पता चल जाता है. बट वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग, ड्रीम्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वे टू टेल द फ्यूचर. पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसमें अपना फ्यूचर देख सकते हो. इट इज नॉट देयर. इट इज जस्ट रिलेटेड टू वन एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, ऑफ योर प्रॉब्लम्स. कुछ प्रॉब्लम हम उसको समझ सकते हैं अपने ड्रीम्स को जान के. Right? They simply can never tell the future. Sleep is the most common experience, but how many of us really think about the wonder and power of sleep? बहुत ही कॉमन चीज है नींद लेना, जो हम सबके साथ होती है. इट हैपेंस विद एवरीवन, विद एवरी स्पीशीज ऑफ द वर्ल्ड. जानवर हो, बर्ड्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, एवरीवन. इट हैपेंस विद एवरीवन. बट हम में से कितनों को पता है कि व्हाट इज द पावर ऑफ अ स्लीप, कि एक नींद लेने से उसकी ताकत क्या है. Many poets have written beautiful poems about sleep. Here is one in which the poet is describing the experience of falling asleep. Now, the author has given a small poem for you and he is saying to read it aloud. Let's read it, and the title of the poem is Lights Out. I have come to the borders of sleep. जब lights out means जब lights बंद हो गई हैं, मैं अपने नींद के कगार पे पहुंच गया हूँ, उसकी सीमा पे, उस पे, उसके बॉर्डर पे पहुंच गया हूँ. द अनफैथोमेबल डीप, अनफैथोमेबल, इम्पॉसिबल टू मेजर द एक्सटेंट, जिसकी गहराई हम नाप नहीं सकते, कि हम नींद की गहराई में पहुंच गए हैं. फॉरेस्ट वेयर ऑल मस्ट लूज, एक, और वो एक ऐसा जंगल है, नींद एक ऐसा जंगल है जहां हम खो सकते हैं. ऑल मस्ट लूज देयर वे, हाउएवर स्ट्रेट और वाइंडिंग, सून और लेट. तो नींद को उसने एक जंगल का सिंबल दिया है कि जिसमें हम अपना रास्ता भूल सकते हैं, चाहे वो सीधा हो, चाहे वो ट्विस्टिंग हो, हम लेट हो जाएं, हम जल्दी पहुंच जाए. दे कैन नॉट चूज, हम इस चीज को चूज नहीं कर सकते कि हमारे साथ उस जंगल में क्या होने वाला है. मीन्स उस जंगल रूपी नींद में क्या होने वाला है, वी जस्ट कैन नॉट चूज दैट. There is not any book or face of dearest look that I would not turn from now टू गेट इन टू द अननोन. हाँ जी, ऐसी कोई बुक नहीं है, ऐसा अपने किसी डियर वन का चेहरा नहीं है, उसकी कोई लुक नहीं है जिसमें कि मैं ये कह सकूं कि मैं किस अननोन जगह पे टर्न लेने वाला हूँ. आई मस्ट एंटर एंड लीव अलोन, मेरे को अकेले ही एंटर करना है, अकेले ही बाहर आना है. आई नो नॉट हाउ, पर पता नहीं कैसे. मीन्स योर स्लीप इज लाइक a jungle, a forest where you are to enter alone. There is no one with you, not any book, not any person with you, and you don't know where you are going to take turn the next moment. Whether you are going straight, whether you are winding, whether you are soon, whether you are late, you cannot choose anything. You are to enter alone and you are to leave alone, but you do not know how. I hope this chapter is clear to you. This is really very interesting chapter. Still, if you feel any doubt, you can always ask me. You're always welcome. Thank you so much.